Hello students, I hope you all are fine and doing well. Students, I welcome you all in this video again. In this video, we are going to learn about SYJC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our 6 chapters. So right from first chapter to 6th chapter we have already completed, and then we have started with the chapter number 7, that is correspondence with debenture holders. And in chapter number 7 also we have completed 4 parts. So in part 1 we have discussed about precautions to be taken by the secretary while corresponding with debenture holders, and in part 2 we have discussed about the circumstances, and in part 3 and 4 we have discussed about the letters. Alright, so in our today's video students we are going to start with the conversion of debentures. But before that, अगर आपने वो सब videos नहीं देखा होगा तो I request you to please go and watch the previous video so that you can understand this video. Now students, what is important that फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिबेंचर्स. सो डिबेंचर्स हमने डिस्कस किया था बेसिक्स में, और डिबेंचर हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया एंड चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया. ओके अच्छा, वो सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी, आपको नॉलेज होगा अबाउट द theoretical part of debentures, then only you can easily understand the letter and you can easily write the letter. Okay, so basic is very important students again. So let's start with the conversion of debentures. So we have learned about the types of debenture, right? So in types of debenture we have discussed about the conversion of debentures. So convertible debentures एक हमने पढ़ा था. So convertible debentures are those debentures which can be converted into equity shares after a certain period of time. That means convertible debentures वो debenture होता है जो convert कर सकते हो आप into equity shares. That means debenture holders are the creditors of the company, we all know. Okay, and shareholders are the owners of the company. So as a creditors, if you want to become a owner of the company, so what you have to do, you have to convert your debentures into equity shares. All right, so ये होता है basics. So इसके लिए basic is important students. Now let's start with the today's topic students. So first, that is conversion of debentures. So convertible debentures are the debentures which are converted into equity shares on the expiry of a specified period and at a specified rate mentioned in the terms of issue. So at the time of issue only company has to mention the terms and conditions of conversion. So उस हिसाब से you can convert your debentures into equity shares. Okay. So after receiving letter of option, the secretary sends letter informing the debenture holders that the debentures are converted into equity shares. ओके, सो आफ्टर रिसीविंग द लेटर ऑफ ऑप्शन, दैट मीन्स यहाँ पे कंपनी ने उनको ऑप्शन दिया हुआ है. दैट मीन्स ये वो डिबेंचर है जो आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो लेटर ऑफ ऑप्शन कंपनी को अगर आ जाएगा एज अ डिबेंचर होल्डर, अगर आपको आपका डिबेंचर कन्वर्ट करना है इनटू इक्विटी शेयर्स, तो एक जो लेटर ऑफ ऑप्शन कंपनी आपको देती है वो लेटर आपको फिल करके कंपनी को सेंड करना होगा. ओके, आपने सेंड कर दिया. अब ये कंपनी को पता चल जाएगा आपके लेटर से कि आपको आपके डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है इनटू इक्विटी शेयर्स. दैट मीन्स यू वांट टू कन्वर्ट योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. ये कंफर्म हो गया. एंड देन जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा वो आपको एक लेटर लिखेगा और बताएगा दैट वी हैव कन्वर्टेड योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. ओके, तो जो लेटर सेक्रेटरी आपको भेज रहा है वही लेटर आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, सो देखते हैं फिर से. आफ्टर रिसीविंग लेटर ऑफ ऑप्शन द सेक्रेटरी सेंड्स लेटर इन्फॉर्मिंग द डिबेंचर होल्डर्स दैट द डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. तो सेक्रेटरी इन्फॉर्मिंग टू द डिबेंचर होल्डर दैट वी हैव कन्वर्टेड योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. ऑलराइट, चलो आगे देखेंगे. इट ऑल्सो स्टेट्स दैट द शेयर सर्टिफिकेट विल बी इशूड. यहाँ पे डबल हो गया है. ओके, तो ये कट कर दो. सो विल बी इशूड टू देम इन ड्यू कोर्स और इट मे बी सेंड अलॉन्ग विद दिस लेटर. तो ये लेटर मिलने के बाद में भी आपको डिबेंचर शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा, या फिर ये लेटर के साथ में वी कैन अटैच द शेयर सर्टिफिकेट ऑल्सो. ओके, तो वो डिपेंड होगा आपके ऊपर कि आप जब लेटर लिखोगे. ये अगर एग्जाम में आता है आपको राइट द डिबेंचर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स लेटर टू द डिबेंचर होल्डर, तो यहाँ पे आपको आपके ऊपर है कि आपको डिबेंचर शेयर सर्टिफिकेट जो होगा वो अटैच करना है या नहीं करना है. ओके, चलो. कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं EOGM, फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स.
Okay, so here if a company wants going to convert the debentures into equity shares, so before that company has to get the approval from the shareholders and company has to pass a resolution in a extraordinary general meeting. उसके बाद में ही ये कन्वर्ट होगा. ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग अगर इसको बोलेंगे, दैट मीन्स अगर कंपनी को डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है इनटू इक्विटी शेयर्स, तो कंपनी को पहले उसके ओनर से परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा. और हमको पता है द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ओके, तो शेयर होल्डर्स के साथ में मीटिंग करना पड़ेगा, मीटिंग में एक रेजोल्यूशन को पास करना होगा, उसके बाद में ही कंपनी कैन कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल द कंपनी सेंड्स लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स. ओके, तो जैसे अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूव्ड होने के बाद में कंपनी एक लेटर सेंड करेगा टू द डिबेंचर होल्डर्स टू इन्फॉर्म देम दैट वी आर कन्वर्टिंग योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. ऑलराइट, चलो आई होप यू अंडरस्टूड. कुछ भी डाउट होगा, एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेटर नाउ. जो आपकी बुक में दिया हुआ है सेम टू सेम लेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट ऑफ द लेटर. अगेन मैं हर एक लेटर में आपको बोलता हूँ दैट फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जब लेटर लिखते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है. मतलब हर एक चीज़ का अपना एक मार्क्स होगा, दैट मीन्स एक फॉर्मेट का आपका मार्क्स होगा, और जो मेन मार्क्स होता है आपका दैट इज़ बॉडी ऑफ द लेटर. तो यू शुड नो द बॉडी ऑफ द लेटर ऑल्सो, एंड मेन पार्ट जो है वो जो मेन आपको मार्क्स मिलेगा दैट इज़ ऑन द बॉडी ऑफ द लेटर. इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ इसका ईजिएस्ट वे है लिखने का, दैट at the time of writing of the letter you should consider yourself that you are the secretary of the company. आपको खुद को कंसिडर करना पड़ेगा कि आप एक कंपनी के सेक्रेटरी हो, तो आप ये लेटर आराम से लिख सकते हो. अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है उसको आपको ध्यान में रखना होगा एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर. फर्स्ट होगा दैट इज़ डेट. तो आपको मालूम होना चाहिए जिस दिन आप लोग लेटर लिख रहे हो वो उस दिन पे डेट कौन सा है, दैट इज़ 5 जून 2019. ओके, तो ये जो आप कन्वर्जन का लेटर भेज रहे हो, तो आपने एक मीटिंग किया था प्रीवियसली. मीटिंग में आपने डिसाइड किया था, अप्रूवल लिया था फ्रॉम द शेयर होल्डर, तो वो मीटिंग हुआ था. इट वाज अ पास्ट इवेंट, वो पास्ट में हुआ था. तो आप जब यहाँ पे लिखोगे अबाउट द मीटिंग, तो आपको वो डेट डालना पड़ेगा. जो जिस दिन आप लेटर लिखोगे उसके पहले वाला डेट होना चाहिए. पहला चीज़, कौन सा डिबेंचर है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स. ओके, तो वहाँ से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा. और फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फॉर्मेट आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 3 के वीडियो में. ओके, तो आप वो देखोगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आएगी, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू राइट द फॉर्मेट. वंस यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, देन एनी लेटर यू कैन राइट ईजीली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट थिंग दैट यू नो, पहला चीज़ जो हम लिखते हैं दैट इज़ नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CI नंबर ऑफ द कंपनी. मिडल में टॉप में आपको लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CI नंबर ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे नेम क्या है, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, एंड देन CI नंबर ऑफ द कंपनी. ओके, ये आपका CI नंबर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. इट शुड बी 21 डिजिट अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिकल. दैट मीन्स अल्फ़ाबेट्स भी होना चाहिए, साथ में नंबर्स भी होना चाहिए, एंड इनका जो काउंट करोगे तो 21 डिजिट का होना चाहिए. वेरी सिंपल. ओके, इसके बाद में आफ्टर CI नंबर you have to leave one line, then you have to go to your left side. In your left side you have to write phone number of the company, fax number of the company and reference number. ये सारी चीज़ें होगी डमी. ओके, इसके बाद में यू हैव टू गो टू योर राइट साइड. यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आएगा हमारा. इन दैट यू हैव टू राइट वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल ID ऑफ द कंपनी एंड डेट. विच डेट, टुडेज डेट. जिस दिन आप लेटर लिखोगे उस दिन का डेट आपको यहाँ पे लिखना है. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ेंगे अभी. सो आफ्टर 3rd पॉइंट देन अगेन यू हैव टू गो टू योर लेफ्ट साइड. यू हैव टू लीव वन लाइन आफ्टर रेफरेंस. रेफरेंस नंबर के बाद में आपको एक लाइन छोड़ना होगा. देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिसीवर. अब यहाँ पे नेम ऑफ द रिसीवर कौन है, द पर्सन टू हुम कंपनी सेंडिंग द लेटर. जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, रिसीवर, उसका नाम आएगा और उसी का एड्रेस भी आ जाएगा. ओके, तो एड्रेस आपको, नाम भी आपको स्मॉल सा लिखना है, सिंपल एकदम, और एड्रेस भी उसका सिंपल सा लिखना है आपको. ओके, चलो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4. ये पॉइंट नंबर 4 होने के बाद में देन यू हैव टू गो
टू अवर मिडल, थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइडली आगे बढ़ के यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. ओके, एंड सब्जेक्ट यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन. आपको हमेशा सब्जेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन में से. हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हियर वी आर कन्वर्टिंग द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. सो वही आपको यहाँ पे लिखना है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. ऑलराइट, सब्जेक्ट के बाद में अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट डियर सर, दैट इज योर सैल्यूटेशन. डियर सर के बाद में कॉमा लगाना है, एंड देन यू हैव टू राइट आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू. मैंने अभी आपको क्या बोला था, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ दैट यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. ओके, सो यहाँ पे आप जब लेटर लिखोगे तो आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हो. ओके, आप एक एम्प्लॉय की, आप एक कंपनी का सेक्रेटरी हो, दैट मीन्स यू आर द एम्प्लॉय. और हमको किसने बोला होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला होगा, या फिर कंपनी के किसी टॉप पोजीशन के पर्सन ने हमको बोला होगा दैट यू हैव टू राइट द लेटर. ओके, तो हमको यहाँ पे वो चीज़ को मेंशन करना है, इसी सेम चीज़ को, दैट आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू. मुझे ऐसा बोला गया है टू इन्फॉर्म यू दैट in accordance with the terms decided at the time of issue of 1,10% fully convertible debentures, the debentures are due for conversion. तो अभी आपका जो कन्वर्जन का टाइम है वो हो चुका है और अभी आपका ये डिबेंचर कन्वर्ट होगा. यहाँ पे देखो 1 लाख डिबेंचर्स है और उसका परसेंटेज क्या है 10% और फुल्ली कन्वर्टेबल है. ओके, इन अकॉर्डेंस विद द अबोव अ स्पेशल रेजोल्यूशन वॉज पास्ड. तो ये कन्वर्ट करने के लिए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था बाय द शेयर होल्डर्स इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25 मई 2019. अब ये जो मीटिंग हुआ था ये पास्ट में हुआ था, तो यहाँ पे आप डेट देखोगे तो आपको समझ में आएगा. हमने जो यहाँ पे डेट लिखा है दैट इज 5 जून 2019 और 5 जून के पहले क्या आता है, मई आता है. ओके, 25 में यहाँ पे दिख रहा है आपको. तो यहाँ पे मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में हमने एक अप्रूवल, एक रेजोल्यूशन पास हुआ बाय टेकिंग द अप्रूवल और परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर. तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, पास का डेट होगा. ओके, फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1. अब ये 2:1 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर आपके पास 2 डिबेंचर है, 2 के बदले में आपको 1 इक्विटी शेयर मिलेगा. Okay, on behalf of 2 debentures you will get 1 equity shares. Okay, as per your letter of option you have been allotted 50 equity shares in lay of 100 debentures. तो आपके पास 100 डिबेंचर है तो 100 के बदले में आपको 50 इक्विटी शेयर मिलने वाला है. ओके, डिटेल ऑफ योर होल्डिंग आफ्टर कन्वर्जन आर एस फॉलोज. तो अभी आपका जो कन्वर्ट हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे हमको लिखना है. फोलियो नंबर, ये आपका डमी नंबर होगा. नंबर्स ऑफ डिबेंचर हेल्ड, कितने डिबेंचर है टोटल 100. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, 100 के बदले में कितना इशूड हुआ 50 हो गया. देन डिस्टिंक्टिव नंबर्स, तो यहाँ पे अभी आपको कितने इक्विटी शेयर्स मिले 50 मिले. तो यहाँ पे जो नंबर का गैप होगा, लेट मी चेंज द कलर. ओके, एज यू कैन सी हियर ये आपका 501 है और ये 550 है. तो आप 501 से 550 काउंट करोगे तो 50 इक्विटी शेयर्स होगा आपका. ओके, देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर 2219. दैट मीन्स विद दिस लेटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वी आर अटैचिंग द शेयर सर्टिफिकेट ऑल्सो. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंक्लोजर में आपको लिखना पड़ेगा अबाउट शेयर सर्टिफिकेट. ओके, चलो कंटिन्यू करेंगे. ड्यूली साइन एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड हियर विद. तो साइन करके आपको शेयर सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है. डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वॉइड विद WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019. तो 25 मई से आपका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो नल हो गया है. दैट मीन्स अब उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज आपका डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू इक्विटी शेयर्स. ओके, देन आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट थैंकिंग यू. थैंकिंग यू के बाद में यू हैव टू राइट योर्स फेथफुली. नीचे आएगा फॉर नेम ऑफ द कंपनी कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स. यहाँ पे भी देखो ऊपर सेम नाम लिखा है आपने हियर. ओके, फिर साइन, फिर मिस्टर नितिन सराफ ब्रैकेट में नाम लिखा हुआ है सेक्रेटरी का, और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी उसके नीचे लिखा हुआ है. और यहाँ पे हम लोग लेटर के साथ में वी आर अटैचिंग द शेयर सर्टिफिकेट ऑल्सो. सो आपको ENCL दैट मीन्स एनक्लोजर ये लिखकर शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि लेटर के साथ में शेयर सर्टिफिकेट भी अटैच्ड है. ऑलराइट, सो अभी देखो
पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग हमने क्या लिखा था, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, सीआई नंबर ऑफ द कंपनी। फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, अच्छा ये आपके समझने के लिए है, ओके, ये आपके समझने के लिए है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, दिस इज अवर पॉइंट नंबर 5, दिस इज अवर पॉइंट नंबर 6, सैल्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं। देन बॉडी ऑफ द लेटर हमारा होता है पॉइंट नंबर 7, देन थैंकिंग यू होता है हमारा पॉइंट नंबर 8, एंड ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट नंबर 9, और कुछ अटैचमेंट होगा इनक्लोजर में, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 10। दैट मीन्स 5 स्टेप्स में आपका पूरा लेटर होता है। तो ये स्टेप्स आपको लिखना नहीं है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आपको लिखना नहीं है, बट आपको याद रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसा लेटर को अटेम्प्ट करना है। यही सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था इन चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3। तो फॉर्मेट ऑफ द लेटर हमने जो सीखा है उसमें सारी चीज़ें हमने ये डिस्कस की है डीपली। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये लेटर के अंदर आपको कुछ भी नहीं समझा होगा, एनी डाउट एनीथिंग you can ask me in comment section students, okay. So I hope you understood students. So till then, thank you very much all, take care students.